Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do second chapter from your Hornbill book, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. So, first of all, let's have a look on our authors. Then we will see the introduction. Then we will start the summary. Okay, so first of all, Gordon Cook, born on 3rd December 1978 in Toronto, is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He had a great interest in writing stories too. Then Alan East, born on 1959, is the author of several historical mysteries. He lives in New York City and is a lawyer with a legal aid society and co-founder of a multi-academy trust. The main important thing, which is trust, that is Central Academies Trust, which has as its aim improving standards in secondary education. So let's have a look on the characters. So the characters of this chapter are, first of all, the narrator is a 37-year-old businessman from Plymouth, England. Then his wife Mary, daughter Suzanne was of 7-year-old, son 6-year-old, name Jonathan. Then two crewmen were there with them. Larry Wiesel, he was an American, and Herb Siegler, a Swiss. Then they start their journey. The journey of they started their journey through sea. So through that Wave Walker, it was the name of that boat they used for their journey. The description is given here. 23 meters long and 30 tons was its weight. So the story is of extreme courage and skill exhibited by Gordon Cook, his family, and crewmen in a war with water and waves for survival. So the story is, as you means, first of all, I told you about its title. We are not afraid to die if we can all be together. Means हम अगर साथ हैं तो हमारे ऊपर कोई भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसका साथ मिल के उसका सामना करेंगे. So first of all, what can be the theme of the story? Okay, so theme of the story is unity in strength. अगर सब साथ हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर सकते हैं. ऑप्टिमिस्टिक नोट से टाइटल दिया गया है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. एंड ये स्टोरी है किस चीज़ की? एक सी वॉयस की. सी वॉयस मीन्स एक समुद्री यात्रा की, जिसमें एक्सट्रीम करेज एंड स्किल्स दिखाई गई हैं बाय गॉर्डन कुक, उसकी फैमिली और जो दो क्रू मैन थे उनके द्वारा. एंड वेव्स फॉर सर्वाइवल. इन 1976 the narrator and his wife Mary, son Jonathan, and daughter Susan set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So इन सभी ने 1976 में नरेटर के साथ उसके फैमिली पीपल एंड टू क्रू मैन, इन्होंने कैसे वो सी वॉयज स्टार्ट की थी. क्यों? क्योंकि उनको कैप्टन जेम्स कुक ने 200 इयर्स बिफोर जो वॉयज की थी, वर्ल्ड का राउंड लगाया था, वैसी ही एक यात्रा करनी थी. इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी सोचा कि वी शुड डू द सेम. सो दे टुक द वॉयज इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप. एक इन्होंने एक अपना शिप बनाया था. What was that name? उसका नेम था वेव वॉकर. डिस्क्रिप्शन आई ऑलरेडी हैव गिवन यू. Accompanied by two experienced crewmen, two experienced sailors, you can say. Names were Larry Wiesel, he was an American, and Herb Siegler, a Swiss, to tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो ये सब किन के साथ गए थे? इन्होंने अपनी यात्रा को, अपनी वॉयस को पूरा करने के लिए टू क्रूमैन को अपने साथ लिया था. लेरी विजिल जो कि अमेरिका से थे, एंड हर्ब सीगलर. क्या करने के लिए? ताकि जो रफेस्ट सीज हैं उसमें ये एक्सपर्ट पीपल इनको हेल्प कर सकें.
So the first part of the journey, that is about 1,05,000 kilometers up to Cape Town, passed off very pleasantly. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ उनकी जर्नी का था वो कितना था, 1,05,000 किलोमीटर्स का, बहुत प्लेजेंटली उनके गुजर गया, बहुत शानदार तरीके से पास हुआ, निकला वो टाइम बहुत अच्छे से. On the second day out of Cape Town, they begin to encounter strong gales. Gales did not worry the narrator, but after that, after those 1,05,000 kilometers, after that journey, when they begin coming out from Cape Town, they encountered strong gales. What they encountered, उनको सामना करना पड़ा किसका, बहुत strong winds का. लेकिन but what happened, the narrator, he was not worried by those strong winds, but the size of the waves was alarming. जो waves थी वो सच में बहुत ज़्यादा dangerous थी, up to 15 meters, as high as the main mast. इतनी ऊंची थी वो जो लहरें थी, पानी की जो waves थी, कितनी ऊंची थी, जितना वो जो मेन जो उसका मास्ट था. मास्ट मीन्स एक ऊंचा सा, आप कह सकते हैं एक टॉल पोल, बड़ा सा पोल, बोट पे जो बड़ा पोल लगा होता है उसको मास्ट बोलते हैं. On 25th December, the writer's ship was in the southern Indian Ocean. 25th December means on the Christmas Eve. राइटर का जो शिप था, it was in the southern ocean, 3,500 kilometers to the east of Cape Town. वहाँ पे था उनका शिप. The family celebrated their new year on board the ship. तो फैमिली ने न्यू ईयर मीन्स 25th के बाद फर्स्ट डेट तक इतने सारे डेज उन्होंने बिताए, एंड फैमिली ने अपना जो न्यू ईयर था, न्यू ईयर की ईव, वो भी सेलिब्रेट की. एट dawn on January 2, 2 जनवरी के सुबह के टाइम, द वेव्स वर जाइजेंटिक, बहुत बड़ी, ह्यूज, बहुत लार्ज वेव्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स, खतरनाक डेंजरस वेव्स वर देयर. अनफ्रेंडली वेदर, वेदर भी कैसा हो गया था, बहुत रफ हो गया था. एंड जाइजेंटिक वेव्स कंपेल्ड द सेलर्स टू स्लो देयर स्पीड. उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्पीड थी उसको कंपेल्ड मतलब बाध्य कर देना, उनको जबरदस्ती अपनी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो करनी पड़ी. ड्रॉप स्टॉर्म जिब, जिब मीन्स होता है एक तिकोने से आकार का पाल लगी होती है, दैट इज कॉल्ड जिब. एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और बहुत सारे अलग अलग प्रिकॉशंस भी उन्होंने लेने शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ द अनफ्रेंडली वेदर. द डेंजर वॉज सो ऑब्वियस, इतना ज़्यादा जो डेंजर, उनको खतरा जो था वो सामने बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस मीन्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था. दैट द सेलर्स कंप्लीटेड लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स. तो प्रिकॉशन के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, दे डिड ऑल दोज. अब ये लाइफ राफ्ट क्या होता है, ये एक रबर ट्यूब होती है, रबर बोट फिल्ड विद एयर, जो कि पानी में तैर सके. रबर की ट्यूब टाइप होती है, बोट जैसी यू कैन से, और किसके लिए यूज की जाती है, सेफ्टी के लिए. और अटैच्ड लाइफ लाइन्स मीन्स रोप्स उन्होंने निकाल के अंडर द सी उनको डाल दिया, वो जो रोप्स थी, रस्सियां थी उनको, ताकि वो अपनी, और लाइफ जैकेट्स जो थी वो भी पहन ली, ताकि वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से, अनफ्रेंडली वेदर से अपने आप को सेव कर सकें. सो suddenly at 6 p.m. the tremendous explosion shook the wave walker. Wave walker was the boat. So इतना जबरदस्त, ट्रिमेंडस, तेजी से आता हुआ एक्सप्लोजन, किस चीज का, ऐसे वेदर का, खतरनाक वेदर का. शूक द वेव वॉकर, उसने क्या किया, जो बोट थी उसको पूरा हिला के रख दिया. एंड द ऑथर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, उसको फेंक दिया गया. किसने, इस सारे अनफ्रेंडली वेदर ने. The ship was about to capsize. Capsize means overturn होने वाला था क्या, ship. When another gigantic wave hit it, tossing it. Tossing means उछाल देना. It upright once again. तो मतलब वेदर कैसा था, एक बार शिप बिल्कुल उलटने वाला था, उसके बाद शिप को उछाल दिया गया था. किसके द्वारा, जो जाइजेंटिक वेव्स थी उन्होंने शिप को पूरा हिला के रख दिया था. पूरा वेदर जो था वो बहुत अनफ्रेंडली हो गया था, बहुत अनप्लेजेंट हो गया था.
डेंजरस हो गया था उन सब के लिए. द ऑथर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक. डेक भी क्या होता है, उसका पार्ट होता है आगे, जो बोट है उसका पार्ट. His head and ribs smashing against the walls. और जो ऑथर था उसको भी उठा करके फेंक दिया गया एंड उसके कंपार्टमेंट में, बोट के अदर कंपार्टमेंट में, और उसका हेड और उसकी जो रिब्स थी वो स्मैश हो गई. मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर टकरा टकरा के बहुत ज़्यादा उसको भी इंजरीज हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बार बार टकरा रहा था किससे, वॉल्स से, कभी इधर तो कभी उधर. In spite of his injuries, the narrator took charge of the situation, but उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी. He dared to control the situation. Somehow he found the wheel, lined up the stem of next wave and hung on till Mary appeared and took charge of the wheel. तो ऐसी सिचुएशन में आप इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इंजरीज, जितनी भी उसमें चोटें भी लगी थी, उसके बाद भी उसने सिचुएशन को संभाला जब तक कि मैरी वहां पे आ नहीं गई कंट्रोल करने के लिए. देन लैरी एंड हर्ब, हु वर दीज टू, sorry, these two were the crewmen, the expert sailors, started pumping out water like madmen. Means in hurried way, continuously what they were doing, they were taking out water from the boat, because boat में पानी घुस चुका था from the gaps में से. The whole starboard side plugged inward. Now what happened? तो जो स्टारबोर्ड था, मतलब जो राइट हैंड साइड थी उस बोट की फ्रंट में, ब्लॉक्ड इनवर्ड, वहां पे क्या हुआ, एक बड़ा सारा सरफेस, जैसे चोट लगती है तो हमारे उस प्लेस पे बहुत बड़ा सारा कुछ घाव जैसा बन जाता है, तो वैसे ही चोट लग के उस पे ऐसा बन गया था बोट पे. द नरेटर मैनेज्ड टू कवर कैनवस अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप. नाउ कंटिन्यूसली वाटर वाज एंटरिंग फ्रॉम द होल्स, जो गैप्स बन गए थे उसमें से. तो क्या किया नरेटर ने, उन गैप्स को फिल करने की कोशिश की सो दैट दे कैन टेक आउट वाटर. वाटर तो वो निकाल ही रहे थे थ्रू पंपिंग, बट वो गैप्स को भी फिल करने की जरूरत थी ताकि और ज्यादा वाटर हमारी बोट में भर ना सके. देन केम मोर प्रॉब्लम्स. उसके बाद और ज्यादा सिचुएशन जो थी वो वर्स होती चली गई. देयर हैंड पंप स्टॉप्ड वर्किंग. उनके जो हैंड पंप्स थे फ्रॉम जिनसे वो वाटर निकाल रहे थे वो भी खराब हो चुके थे. इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड. जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो भी क्या हो गया था, उसमें भी मशीनरी जो दैट वाज कंप्लीटली फेलियर, वो भी वर्क नहीं कर रहा था. फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम दैट वर्कड. देन द नरेटर ही गॉट, एक एक्स्ट्रा से इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ था, ही टुक दैट वन एंड tried to handle the situation. The entire night was spent in pumping, steering, repairing and sending radio signals. तो ये सारी नाइट उनकी किस चीज में, सारी की सारी पंपिंग, मतलब वो वाटर निकालने में, कहीं पे होल्स रिपेयर करने में और कभी मैसेजेस सेंड करने में उसमें बीती. द नरेटर चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट आइल एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वाज देयर ओनली होप. तो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था केवल अब वही उनकी होप थी. आइल एम्स्टर्डम इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज रिटन इन योर बुक एंड हियर आई एम गिविंग यू additional information about that. It's a French word which means island. So here they calculated that chart and saw that when they are going to reach that island of Amsterdam, also known as Amsterdam Island, New Amsterdam or Nouvelle Amsterdam, it is an island of the French southern and Antarctic lands in the South Indian Ocean. So Sue and John were injured, but they said that they were not afraid to die if they could be all together. So this was the courage shown by the two children of the narrator, Sue and John. डॉटर एंड द सन जो थे दे वर ऑल्सो इंजर्ड, वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे. बट जो ऑप्टिमिस्टिक नोट उन्होंने दिया, ऑप्टिमिस्टिक नोट मीन्स, ऑप्टिमिज्म का मीन्स होता है आशावाद, होप. होपफुली उन्होंने क्या बोला, अगर हम साथ में हैं तो भी हमें मरने से डर नहीं लगेगा. इफ वी आर ऑल टुगेदर, हम अलोन नहीं है, वी आर विद आवर पेरेंट्स, वी ऑल आर टुगेदर. Sue's head was swollen and she had a deep injury. Sue का तो हेड जो था वो भी टकरा के बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ गई थी. She got very bad injury and
द नरेटर बिकेम मोर डिटरमाइंड सीइंग हिज चिल्ड्रंस करेज. अब नरेटर जो था उसका भी जो डेयर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. बट चिल्ड्रन उनके जो थे स्यू एंड जॉन, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई. फाइनली दे रीच्ड आइल एम्स्टरडम, a volcanic island where they were welcomed by 28 inhabitants. और फाइनली वो कहाँ पहुंच गए, जो कि उनकी लास्ट होप थी, आइल एम्स्टरडम. उस आइलैंड पे पहुंच गए. वोल्केनिक आइलैंड था जहाँ, वहाँ पे उनको क्या किया, 28 इनहेबिटेंट्स थे जो वहाँ के, उन सब ने उनको वेलकम किया कि वो इतनी सारी जर्नी जो है वो पार करके आए हैं. Thus, the collective strength and never failing optimism of the sailors made it possible for them to come out of the jaws of death. So, collective strength and effort, यानी सबका मिला जुला प्रयास जो था उसकी वजह से, और never failing optimism, कभी खत्म नहीं होने वाली आशा, ड्यू टू दैट उन sailors ने पॉसिबल कर दिखाया. और वो कहाँ से वापस आए, जॉज ऑफ डेथ, मीन्स आइसी हैंड्स ऑफ डेथ से वो वापस आकर के दिखाया उन्होंने. दो जोनाथन एंड सुजन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वेव वॉकर, बट देयर करेज, फोरबियरेंस, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम. जोनाथन एंड सुजन दोनों बहुत छोटे थे, 6 and 7 ईयर ओल्ड थे. दे डिडंट डू एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया वेव वॉकर को सेव करने के लिए. बट the words, the courage they were showing, the words they were speaking, the faith they were showing, और optimism जो वो दिखा रहे थे, extra strength जो दिखा रहे थे, उनकी वजह से नरेटर और उनकी टीम में भी क्या, एक अलग से courage and optimism जागा. and due to that they were successful in their journey. See boys, the bravery of the strong-willed children is noteworthy in this story. this story में main चीज क्या है, वो जो दो चिल्ड्रन हैं उनकी विलफुलनेस, स्ट्रांगली उन्होंने सबको करेज दिया, और सबके साथ मिलके जो वो नोट दिया, व्हाट नोट वाज दैट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल टुगेदर. तो दैट इज नोट वर्दी, वो काबिल तारीफ है. सो डियर चिल्ड्रन, in the next video we will discuss about the question answers of this chapter. Stay connected, keep watching. Thank you so much.